Good morning students. Today I am going to explain the next topic of the chapter squares and square root. In the previous video I was discussing about the square numbers, perfect square numbers and the properties of square numbers. What is Pythagorean triplets, how to make a Pythagorean triplet when a number is given. But I am going to explain this topic in this video. Today I am going to do the following topics. The first topic is meaning of square root and the second topic is finding square root of a perfect square number. आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है। देन उसके बाद पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। फिर हम लोग एक एक मेथड को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट। व्हाट इज स्क्वायर रूट? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n is that number which when multiplied by itself gives n as the product. I am repeating again, square root. The square root of a number n is that number which when multiplied by itself gives n as the product. For example, suppose we have a number 5 and 5 multiplied by 5 gives 25. 5 एक number है, it's multiplied by itself. 5 multiplied by 5 gives 25. So we can say that 5 is the square root of 25. We write square root of 25 equals to 5. This is the symbol of square root. Is that clear? तो स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट ये होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट किस नंबर से जनरेट हुआ, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। इज दैट क्लियर? फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर 5 था, हमने 5 को मल्टीप्लाइड बाय 5 करा, इटसेल्फ किया, दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 25। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा? 25। नाउ वी कैन से दैट 5 जो है वो स्क्वायर रूट है किसका? उसके प्रोडक्ट का, मींस 25 का। सो वी कैन राइट इट एज 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड नाउ वी राइट बाय यूजिंग द सिंबल स्क्वायर रूट ऑफ 25 गिव्स 5। इज दैट क्लियर? So this is the definition of the square root or the meaning of the square root. Now we can explain square root by taking some examples. Suppose we have a number like square root of 1 equals to 1. Since one number multiplied by 1 gives 1, that means square root of 1 is equals to 1. Again, number is 2 multiplied by 2 gives 4. We can say that square root of 4 is equals to 2 because 4 is generated from 2. Now we can take another example. 3 multiplied by 3 gives 9. We can say that square root of 9 is equals to 3. Now 4 into 4 gives 16. Now we can say that square root of 16 is equals to 4. Again 5 into 5 is equals to 25. Now we can say that square root of 25 gives 5. So this is the examples or different examples of the topic square root. In this following examples, with the help of these examples we can explain what is the square root, how to find the square root, what is the square root of 1, 4, 9, 16, 25 etc. Is that clear? चलिए come on to the next topic, that is finding square root of a perfect square number. Perfect square numbers. What is perfect square number? Perfect square numbers are the numbers in which pair of equal factors, in which जिसमें क्या होते हैं पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स होते हैं, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और उन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने का क्या मेथड है, कितने मेथड है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के बेसिकली दो मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट एंड मेथड नंबर 2। द फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन method. So there are two methods by which we can find the square root of a
परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड के बारे में कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज वी हैव एग्जांपल, फर्स्ट एक हमारा मेथड है यहाँ पर, आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड नंबर 1 दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर 576। एक नंबर है हमारा, इसको हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मींस वी कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 576, ये हमको फाइंड करना है। तो हम देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड हाउ कैन वी फाइंड द मेथड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो सबसे पहले किसी भी नंबर का हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि जो भी हमारा नंबर गिवन है उसका हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 576 फैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर्स में डिवाइड करेंगे इसको। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। नाउ अगेन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से 70, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 36, 2 8 जा 36, 18 2 जा 36, 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। तो किसी भी नंबर्स का विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि गिवन नंबर्स के हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आ जाते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या हुआ, स्प्लिट द नंबर इन द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेक कर लेते हैं। अगेन सेकंड स्टेप जो आता है इसका कि हम क्या करते हैं, सेम नंबर्स के पेयर बनाते हैं, लाइक फैक्टर्स बनाते हैं। जो हमारे लाइक फैक्टर्स होते हैं उनके पेयर फॉर्म करते हैं। जैसे देखिए जैसे मान लीजिए हमारा 576 था, ये हमारे प्राइम नंबर्स आए। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को हटा करके इसकी जगह पे इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 इंटू 3 इंटू 3। नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम है हमने नंबर्स को स्प्लिट किया इन द प्राइम फैक्टर्स में। नाउ वी कैन राइट द नंबर्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। नाउ वी मेक द पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। सेम नंबर्स के हम दो नंबर्स के पेयर बनाएंगे। जैसे 2 2, ये पेयर बन गया हमारा, इस 2 का एक पेयर कंप्लीट हो गया है, एक 2 का पेयर ये कंप्लीट हुआ, एक ये कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हर पेयर में से एक फैक्टर्स को हम लोग आउट कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्म इज फैक्टर पिक वन आउट, एक को पिक करके बाहर निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से भी एक 2 बाहर आउटसाइड आ गया, इसमें से भी एक पिक कर लीजिए और इसमें से भी एक पिक करेंगे, ठीक है। तो जो फैक्टर्स हमारे बाहर आते हैं नंबर्स, इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सॉरी यहाँ पे 3 है तो 3 बाहर हो गए। अब इसको करिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 24। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर। तो 576 हमारा कैसा नंबर था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। क्यों, क्योंकि सारे नंबर्स के हमारे प्राइम फैक्टर्स करने के बाद सबके पेयर कंप्लीट है, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर रिमेनिंग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, आई एम रिपीटिंग अगेन, suppose we have a number 576 and we have to find the square root of the 576. Then the first step is split the given numbers in prime factors. सबसे पहला काम, जो भी given numbers है उसको prime factors में ब्रेक करिए, ठीक। जब आप उसको prime factors में ब्रेक कर लेंगे, then हम क्या करते हैं, फॉर्म
वी फॉर्म अ पेयर ऑफ लाइक फैक्टर्स, लाइक फैक्टर्स के पेयर फॉर्म करते हैं लाइक दिस। हमने यहाँ पे सारी फैक्टर्स को यहाँ अंदर लिख लिया, देन हमने सेम नंबर्स के दो नंबर्स के पेयर फॉर्म किए। तो पहला पेयर ये बना, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सारे पेयर जब बन जाते हैं देन क्या करते हैं, फ्रॉम ईच पेयर सारे पेयर्स में से, हर एक पेयर में से हम लोग पिक वन आउट, एक एक नंबर को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे इस पेयर में से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से भी एक 3 आउटसाइड कर लिया। जो भी नंबर्स हमारे बाहर से आते हैं उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, देन द 24 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 576। दिस इज द एग्जाम्पल। With the help of this example, we can understand the prime factorization of method of the finding square root of the perfect square number. Come on to the next example. एक और एग्जाम्पल ध्यान से उसको समझते हैं। Question is, example है, find the square root of 7 7 4 4, 7 7 4 4। स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप है इसका हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं, गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। स्प्लिट द गिवन नंबर, split the given numbers in prime factors, prime numbers, prime factors और prime numbers। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी गिवन नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। ठीक, तो चलिए ब्रेक करते हैं। नंबर हमारा 7 7 4 4, तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करिए इसको, तो पहले 2 से काट देते हैं इसको, 2 3 जा 6, 1 17, 2 8 जा 16, 1 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अगेन फिर छोटा से छोटा प्राइम नंबर्स लेंगे, फिर 2 ले लेते हैं, 2 1 जा 2, 1 9 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, again 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11 11 11 11 जा 11। तो these are the factors of the given number। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा स्प्लिट द गिवन नंबर्स इन द प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे जो फैक्टर्स आए, वी कैन राइट इट एज 7 7 4 4 इक्वल्स टू, हाउ मेनी टाइम्स 2 कम्स, 1 2 3 4 5 6, 2 into 2 into 2 into 2 to 2, 1 2 3 4 5 and 6, again 11 into 11। So these are the factors। The first step is split the given numbers in prime factors and these are the prime factors। Again the second step is, second step में क्या करते हैं हम लोग, इक्वल फैक्टर्स के पेयर फॉर्म करते हैं। स्टेप नंबर 2, form pair of equal factors, form pair of equal factors, like factors कह सकते हैं इसको, like factors का हम लोग फॉर्म बनाएंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, तो पहला हमारा ये पेयर कंप्लीट हुआ, तो 2 into 2 एक पेयर हो गया। अगेन फिर ये पेयर कंप्लीट हुआ, 2 into 2, अगेन फिर ये पेयर कंप्लीट हुआ, देन 2 into 2, अगेन फिर ये पेयर कंप्लीट हुआ, 11 into 11। ठीक, तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, स्टेप नंबर 2 में फॉर्म पेयर ऑफ इक्वल लाइक फैक्टर्स और इक्वल फैक्टर्स। तो हमने यहाँ पे दो सेम नंबर्स के पेयर फॉर्म कर दिए। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, from each factor pick one out, from each factor, from each pair pick one out, pick one out।
हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पेयर बने हैं, फॉर्म हुए हैं, उसमें से एक एक नंबर बाहर निकालें। पिक वन नंबर आउट, पिक वन नंबर आउट, एक नंबर को बाहर कर लेंगे। तो देखिए पहले हमारा पेयर ये था 2 × 2, तो इसमें से एक नंबर बाहर हो गया। अगेन इसमें से भी एक नंबर बाहर आएगा, फिर थर्ड वाले में से भी एक नंबर बाहर, एंड इस वाले में से भी एक नंबर बाहर। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 हुआ। हमने क्या करा, सारे पेयर में से एक एक नंबर को आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया। अगेन स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, multiply the numbers so picked, multiply the numbers so picked, जो हमने नंबर बाहर करे हैं, आउट किए हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 11 = 88। ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 7744, 7744, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर 7744. So these are the steps. With the help of these steps we can find the square root of any perfect square number by using the prime factorization method. Is that clear? Come on to the next example. एक example और देख लेते हैं। Suppose the number is finding the square root of 9025, नंबर है 9025, इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 9025, तो देखिए 3 से कटता कैंसिल होता है कि नहीं होता, 3 से नहीं होगा, 5 से करते हैं। 5 × 5 4 0 45 × 40 एंड 0 5 5 × 25। अगेन फिर 5 से करते हैं। 5 3 × 15, 3 30, 5 6 × 30, 5 1 × 5, 361। अब इसको देखिए 361 किससे कैंसिल होता है, तो 361, 3 से काटिए इसको, 3 3 3 1 × 3, 3 2 6, 3 से नहीं जाएगा, फिर जाएगा इससे 19 से देखते हैं। 19 का होता है सर 19, तो 19 × 19 17 19, तो 19 × 19, ये इसके फैक्टर्स आए 9025 के। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 × 5 × 19 × 19। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या था हमारा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट किया गिवन नंबर को, देन हमने क्या करा, इसको पेयर ऑफ लाइक फैक्टर्स फॉर्म करेंगे। तो ये हमारा एक पेयर कंप्लीट हो गया, एक पेयर यहाँ कंप्लीट हो गया, और हर पेयर में से एक एक बाहर निकाल लेंगे। 5 × 19। तो देन नेक्स्ट स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप में हमने इसको एक एक पिक वन आउट कर लिया ना। फोर्थ स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 19 5 × 95। तो ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 9025। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गया, दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर सेकेंड मेथड के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर का या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए यूज होता है, और जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे हम किसी भी नंबर का, आइदर वो डेसिमल नंबर हो या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो,
ठीक, तो सबका हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।